حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ مسلمانوں کو گولی مارنے کی AI ویڈیو پر ہلچل، MIM وفد کی آسام کے CM کے خلاف پولیس کمشنر سے شکایت، متنازع ویڈیو پر فوری قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ تلنگانہ بلدیاتی انتخابات کی مہم کا اختتام، تمام سیاسی جماعتوں نے شدت کے ساتھ چلائی مہم، ایک دوسرے پر عائد کیے سنگین الزامات، مجلس اتحاد المسلمین کا 282 وارڈز میں مقابلہ۔ BJP کا بھگوان رام نہیں، اسد الدین اویسی ہیں، چیف منسٹر ریونت ریڈی کا بڑا بیان، مجلس کو قرار دیا جمہوری طاقت، ساتھ ہی کہا ووٹ مانگنے بھاجپا اسد الدین اویسی کا نام کرتی ہے استعمال۔ تلنگانہ میونسپل الیکشن سے ایک دن قبل نارائن پیٹ میں BJP امیدوار کی خودکشی، مگتھل بلدیہ میں کونسلر کے لیے مقابلہ کر رہے تھے وائی مہادیو، کانگریس پر ہراسانی کا الزام، بھاجپا کا احتجاج۔ عطا پور میں واقع سوزوکی شو روم کے سروس سینٹر میں آگ لگنے کا واقعہ، 3 گاڑیاں خاکستر ہو گئی، 90 خاندانوں کا تخلیہ کروایا گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مسلمانوں کو گولی مارنے سے متعلق قابل اعتراض ویڈیو شیئر کرنے کے معاملے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایک وفد نے آسام کے وزیر اعظم ہیمنتا بسوا سرما کے خلاف حیدرآباد پولیس کمشنر کے دفتر میں باقاعدہ شکایت درج کروائی۔ اس موقع پر MIM کے وفد نے پولیس کمشنر VC سجنار IPS سے راست ملاقات کی اور پارٹی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کے دستخط شدہ لیٹر پر مبنی تحریری شکایت بھی پیش کی۔ MIM نے الزام عائد کیا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے پوسٹ کیا گیا یہ ویڈیو نہ صرف قابل اعتراض ہے بلکہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور نفرت کو ہوا دینے کے مترادف ہے، جس پر فوری اور سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ پارٹی نے مطالبہ کیا کہ اس طرح کے بیانات اور ویڈیوز ملک کے آئین اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے خلاف ہیں، لہذا قانون کے تحت ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ناگزیر ہے۔ آج ہم تمام MLAs اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس اتحاد المسلمین کے اور بحیثیت رکن پارلیمنٹ کے ان کے لیٹر ہیڈ کے اوپر کمپلین لے کر یہاں پر کمشنر پولیس سے آ کر ملے کہ گزشتہ دنوں میں جو سوشل میڈیا کے اوپر آسام کا چیف منسٹر ہیمنت بسوا شرما نے ایک ویڈیو فوٹو پوسٹ کیا تھا، ایک ضعیف مسلمان اور ایک نوجوان مسلمان بچے کو گولی مارتے ہوئے، شوٹنگ کرتے ہوئے، خیر بعد میں وہ پوسٹ اس نے ڈیلیٹ کیا، لیکن وہ پوسٹ ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ سپریم کورٹ کی خاص طور پہ یہ رولنگ ہے، سپریم کورٹ کا یہ ججمنٹ ہے کہ آپ کسی کے خلاف میں ایسا مذہبی نفرت نہیں پیدا کر سکتے، خاص طور کے اوپر مسلمان داڑھی والے شخص اور نوجوان بچے کے اوپر گولی مارتے ہوئے ہندو مسلم فرقہ پرستی کا ذہن اور اس کی ذہنیت کا جو حال ہے آسام کے CM کا، اس تعلق سے انہوں نے جو یہ حرکت کی تھی اس کے اوپر ہم نے آ کر کمشنر صاحب کو کمپلین دیا ہے اسد صاحب کے لیٹر ہیڈ کے اوپر، اور کمشنر صاحب نے تیقن دیا کہ قانون کے مطابق ان کے اوپر کیس بک ہوگا اور ہم کارروائی کریں گے۔ تلنگانہ میں میونسپل انتخابات کے لیے گرما گرم انتخابی مہم کا کل شام اختتام عمل میں آیا۔ ریاست کی مختلف بلدیات کے لیے چہارشنبے 11 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ GHMC کے سوا تمام بلدیات میں کل رائے دہی کا عمل ہوگا۔ بلدی انتخابات کی مہم زور و شوروں کے ساتھ چلائی گئی تھی۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے تمام بڑے اور اہم قائدین کو انتخابی مہم میں جھونک دیا تھا اور ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ایک سروے کو شدید تنقیدوں کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کانگریس کی انتخابی مہم میں حصہ لیا اور انتخابی ریلیوں اور روڈ شوز سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس دوران BRS اور اس کے قائدین کو شدید تنقیدوں کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ BRS کی انتخابی مہم کی قیادت KTR اور ہریش راؤ نے کی اور انہوں نے بھی کانگریس اور چیف منسٹر ریونت ریڈی پر شدید تنقید کی۔ BJP کے لیے G کشن ریڈی، D اروند، بنڈی سنجے نے انتخابی مہم چلائی۔
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 282 उम्मीदवार जुमला 43 बल्दियात में इंतखाबी मैदान में उतारे हैं। मजलिस व रुकने पार्लियामेंट सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस के दूसरे कायदीन ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। जुमला 2996 वार्ड्स में कल वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना भर में म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए चारशुबा 11 फरवरी को राय दही होगी और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हैदराबाद के सिवा तमाम पुलिस कमिश्नरेट्स के हुदूद में राय दही के इंतजाम किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना बी शिवाधर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बल्दी इंतखाबात को पुरसुकून बनाने के लिए पुलिस की जानिब से मौसर इक़दाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि रियासत भर में जुमला 1183 लाइसेंस याफ्ता हथियारों को डिपॉजिट किया गया था। 4318 अफराद को बाउंड ओवर किया गया और 398 नाकाबिले जमानत वारंट्स की तामील की गई थी। डीजीपी ने बताया कि रियासत भर में मुख्तलिफ मुकामात पर बैन रियासती सरहदी चेक पोस्टें भी कायम की गए थे। अंदरून रियासत में बैन जिले चेक पोस्ट कायम करते हुए भी तलाशियां ली गई थीं। इंतखाबी मुहिम के दौरान जुमला 3 करोड़ 9 लाख रुपए मालियाती अशिया की जब्ती अमल में लाई गई थी। इनमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकद रकम शामिल थी। मुख्तलिफ मुकामात पर शराब की भी जब्ती अमल में लाई गई थी। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने बताया कि पुलिस की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान मौसर इंतजाम किए गए थे और राय दही के लिए भी वसी तर इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि इंतखाबात के पुरअमन व पुरसुकून इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। तो जब भी हमको ऐसा कोई इतला आया है, कोई इन्फॉर्मेशन आया है कि हम थोड़ा कहीं जबर कर रहे हैं कैंडिडेट्स के ऊपर, तो हम लोग तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं उसको अरेस्ट करना या केस बुक करना। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जो जैसा बात चल रही है कि इतना बड़े कि लोग जबर करके उनको विड्रॉ करवा रहे हैं, वैसा नहीं है। वो तो अफवाहें ज़्यादा फैल रहे हैं। तो हम लोग कोई भी शिकायत हो, जो अफवाह हो या एक्चुअल शिकायत हो, हमारे नज़र में आते ही हम लोग उसका कार्रवाई कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। अगर फैक्ट है तो हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे, ज़रूर एक्शन लेंगे। आत्महत्या वाली जो खबर, आत्महत्या के बाद में एक केस भी रजिस्टर हुआ है, एफआईआर भी हुआ है, उसका कार्रवाई चल रही है। उसको तहकीकात करना अभी तो हुआ है, तो 3-4 घंटे पहले हुआ है। तो हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करे हैं ऑलरेडी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के दरमियान गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि मुकामी इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम का क्या ताल्लुक है? क्या मोदी आकर नालियां साफ करेंगे? उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी तेलंगाना में नफरत और फिरक़ेवाराना सियासत के जरिए वोट हासिल करना चाहती है और इसकी असल सियासत का मरकज भगवान राम नहीं बल्कि AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिन्हें बीजेपी एक सियासी ड्राउना पुतला बनाकर बार बार अवाम के सामने पेश करती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के कायदीन बैरिस्टर ओवैसी का नाम लिए बगैर सियासत नहीं कर सकते और इन्हें वोट मांगने के लिए अलाउद्दीन के चिराग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मरकज में इख्तिदार में होने के बावजूद अगर असदुद्दीन ओवैसी वाकई मसला है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि AIMIM एक जमहूरी सियासी जमात है जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात लड़ती है और ये साबित करता है कि बीजेपी की सियासत नज़रियाती दिवालियापन का शिकार हो चुकी है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वह नफरत की सियासत को मुस्तरद करें और सच को और जमहूरियत के हक़ में वोट दें। ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క చరిత్ర. దీన్ని విశ్లేషించి వీళ్ళకి ఒక్కటి వీళ్ళ దేవుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. ఉత్తగా రాముడి పేరు చెప్తారు కానీ రోజు దండం పెట్టుకునేది అసదుద్దీన్ ఓవైసీకే. వీళ్ళ లైఫ్ లైన్ అంటారు కదా, వీళ్ళ లైఫ్ లైనే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. ఆయన పేరు లేకుండా, ఆయన జపం లేకుండా రాముడి పేరు ఎన్నిసార్లు వీళ్ళు తలుచుకున్నారో, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పేరు ఎన్నిసార్లు తలుచుకున్నారో చూడండి. ప్రతిసారి అసదుద్దీన్ ఓవైసీని అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంగా మార్చుకొని ఓట్లు అడుగుతారు. మరి అన్ని మీ ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయి కదా. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఇంత దుర్మార్గుడు అయినప్పుడు మీరు ఎందుకు అతన్ని నియంత్రించలేకపోతున్నారు? ప్రజాస్వామ్యంలో AIMIM కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. గెలిచిన దగ్గర వాళ్ళు గెలిచినారు, ఓడిన దగ్గర ఓడినరు. వాళ్ళు గుజరాత్లో పోటీ చేసిరు, ఉత్తరప్రదేశ్లో పోటీ చేసిరు, బీహార్లో పోటీ చేసిరు, మన వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా పోటీ చేసి 5 సీట్లు గెలిచారు. వాళ్ళు కూడా ఒక రాజకీయ సంస్థ.
ఒక రాజకీయ పార్టీ, కానీ వాళ్ళని భూతంగా చూపించి ఎంతకాలం మీరు ఓట్లు అడుగుతారు? కాబట్టి కేవలం మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి కొన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులను భూతంగా చూపించి రాజకీయ మనుగడ సాధించాలని ఆలోచన చేయడమే వాళ్ళ భావ దారిద్ర్యానికి పరాకాష్ట. ఈ భావ దారిద్ర్యాన్ని చూసి బీజేపీకి ఓటు వేయాలన్న తెలంగాణ ప్రజలు మీరు ఆలోచన చెయ్యండి. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीआरएस और बीजेपी दोनों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 25 माह से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से सरकारी तनख्वाह और मराआत तो ले रहे हैं, लेकिन एक भी अवामी मसला ऐवान में नहीं उठा पाए। रेवंत रेड्डी ने तंज़िया अंदाज में सवाल किया कि क्या बीआरएस कायदीन मंशियात के असर में बातें कर रहे हैं और यहाँ तक कि क्या ईगल टीम को इनका नार्कोटिक्स टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी कायदीन बंडी संजय और किशोर रेड्डी ने जीएचएमसी इंतखाबात में अवाम को झूठे वादे से धोखा दिया और बीजेपी वो बीआरएस के दरमियान खुफिया ताल्लुकात हैं, जबकि बीजेपी क़ियादत के चंद्रशेखर राव, केटी रामाराव और हरीश राव को गिरफ्तारी से बचाना जा रहा है। ప్రసంగాలు, రెచ్చగొట్టే మాటలు స్థాయికి మరిచి చూస్తుంటే మా ఈగల్ టీంకు చెప్పాల్సి వచ్చేటట్టుంది. నార్కోటిక్ ఎనాలిసిస్ ఏదన్నా గంజాయి కానీ, కొకైన్ కానీ, హెరాయిన్ కానీ ఏమైనా కొట్టి మాట్లాడుతున్నారా వీళ్ళ మాటలు చూస్తుంటే అని. ఎందుకంటే హోష్లో లేకుండా ఉన్నోడు అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడతాడు. హోష్లో ఉన్నోడు, ఈ సమాజం పట్ల బాధ్యత ఉన్నోడు, పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకున్నా అనుకునేటోడు మాట్లాడే మాటలేనా? ఇలాంటి వాళ్ళకి ఈరోజు ఓటేయమని అడిగితే వాళ్ళు అడుగుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి దోపిడీ అలవాటు పడ్డది. ఏ రూపాయి కూడా ఇసుక వదలే, గాలి వదలే, నీరు వదలే, ఇండ్లు వదలే, ఏది వదలే. లాస్ట్కు భార్యాభర్తలు మాట్లాడుకునే టెలిఫోన్ సంభాషణలు కూడా వదలలే వాళ్ళ పైశాచిక ఆనందానికి. 25 నెలలో 26 నెలలు అయింది. జీతభత్యాలు తీసుకుంటుండు, ప్రతిపక్ష హోదా తీసుకున్నాడు, క్యాబినెట్ ర్యాంక్ పవర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు, ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని వసతులు పొందుతున్నాడు. ఒక్కసారి కూడా సభకు రాలే. ఒక సమస్య మీద చంద్రశేఖర్ రావు గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా పని చెయ్యలేదు. ఇది మీ కళ్ళ ఎదుటనే జరుగుతున్న విషయం కదా. మిగతా వాళ్ళు వచ్చినా కూడా సభను ఎట్లా నడవకుండా అడ్డుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప సభలు ఏమన్నా విషయాలు ప్రస్తావించరా? ఇన్నిసార్లు శాసనసభ జరుగుతే. तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम के मौके पर सियासी बयानात में तेजी आ गई है, जहां AIMIM के फ्लोर लीडर और रुकने असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने करीमनगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस और रियासती सियासत में खुलकर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि MIM के कायदीन कभी वजीर आला के पास नहीं जाते, बल्कि चाहे रेड्डी हो या राव, सबको हुकूमत चलाने के लिए MIM की हिमायत दरकार होती है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की कामयाबी MIM के ताउन के बगैर मुमकिन ही नहीं थी और बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी अपनी असल सियासी ताकत साबित करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना की सियासत में MIM हमेशा एक अहम और फैसला कुन जमात के तौर पर मौजूद रहेगी। तहम इन दावों पर कांग्रेस वजीर श्रीधर बाबू ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी पार्टी कारकुनों की अंतिक मेहनत का नतीजा थी, न कि किसी एक जमात की हिमायत का। कांग्रेस के गुलामों, बड़ा पंजा दिख रहा है यहाँ पे। गुलामों, अगर रेवंत और कांग्रेस खरीब नहीं आती तो जुबली हिल्स जीतते थे, फलाना साहब जीतते थे। अरे बाबा, इस वास्ते तो हमारे पास आते हैं। कोई भी रहने दो, रेड्डी रहने दो, राव रहने दो, उसको जरूरी है
हमारे पास आना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे साथ आपकी ताकत है, हमारे साथ आपकी दुआ है, हमारे साथ आपका इत्तेहाद है। आप नहीं तो हम नहीं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर मल्लुबट्टी विक्रमार्का ने म्युनिसिपल इंतखाबात से एक दिन कबल रियासत और ख़ास तौर पर मोदेरा बल्दिया के अवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि मोदेरा हल्का के लिए इंतखाबात सिर्फ सियासी कामयाबी के लिए नहीं है, बल्कि ये मोदेरा बल्दिया के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के इंतखाबात हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनका मकसद है कि मोदेरा बल्दिया को एक आइडियल शहर बनाएं और यहां अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मोदेरा बल्दिया में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना चाहती है, आइंदा 50 साल की ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए इक़दाम करना चाहती हैं। उन्होंने मोदेरा म्युनिसिपल इंतखाबात में राय दही में हिस्सा लेने अवाम से अपील की और कहा कि इन्हें सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम का वोट अहमियत का हामिल है और इसे तब्दीली के हक़ में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि म्युनिसिपालिटी की तरक्की और अवाम की बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। ప్రియమైన మధిర పట్టణ వాసులారా, మీ అందరికీ ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. రేపు జరిగేటువంటి మధిర మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన ఎన్నికల్లో మీ అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులుగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి వారిని ఆశీర్వదించి గెలిపించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేయడం కోసమే నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. మధిర మనందరిది, మధిర అభివృద్ధి జరగాలి. మధిర ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి ఎదిగిన పట్టణంగా ఈ రాష్ట్రానికి ఒక ఆదర్శంగా తయారు కావాలి. దానికి కావాల్సిన మౌలిక వసతులన్నీ ఈసారి చేసుకోవడానికి అదృష్టం కొద్ది అవకాశం కలిగింది. ఈ అవకాశాన్ని ప్రజాప్రభుత్వంలో మీ అందరి చేత ఆశీస్సులతో గెలిచిన నేను ఈరోజు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాను. మధిర పట్టణాన్ని భవిష్యత్తులో మరో 50 సంవత్సరాలకు పనికొచ్చేటట్టుగా అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రణాళికలు తయారు చేసుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రణాళికలన్నింటినీ అమలు చేయటానికి, అమలు కావటానికి తెచ్చినటువంటి నిధులు నిరుపయోగం కాకుండా సక్రమంగా ఖర్చు పెట్టడానికి ఉపయోగపడే స్థాయిలో ఉండే విధంగా మధిర పట్టణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులుగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి వారందరినీ మీరు ఆశీర్వదించి గెలిపించి పంపిస్తే వారందరి చేత మీ అందరికీ నేను మాటిస్తా ఉన్నాను, మధిర అద్భుతమైనటువంటి పట్టణంగా, నగరంగా ఎదగటం కోసం కావలసిన విధంగా మరో 50 సంవత్సరాలు పనికొచ్చే విధమైనటువంటి అభివృద్ధిని పునాదులు వేస్తా ఉన్నాను, ప్రణాళికలు తయారు చేస్తా ఉన్నాను. దయచేసి మీరు అందరూ, నేను మనస్ఫూర్తిగా రాజకీయాలకు అతీతంగా పట్టణ అభివృద్ధినే ప్రధాన ధ్యేయంగా పెట్టుకొని ఒక్కసారి ఆలోచన చేసి ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థుల్ని పూర్తి స్థాయిలో గెలిపించవలసిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. నమస్కారం. तेलंगाना के नारायणपेट जिले में बल्दियाती इंतखाबात से एक दिन कबल मकताल म्युनिसिपलिटी के वार्ड नंबर 6 से बीजेपी उम्मीदवार यरुकला महादेव की खुदकुशी के वाक़े ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस कायदीन और मुकामी वजीर व श्रीहरि की मुबैना हरासानी के बायस महादेव ने इंतहाई कदम उठाया, जिसके खिलाफ बीजेपी कारकुनों ने हैदराबाद में डीजीपी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। तहम पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर हालात पर काबू पाया। डीजीपी बी शिवदर रेड्डी ने बताया कि वाक़े से मुताल्लिक़ कोई खुदकुशी नोट बरामद नहीं हुआ और अहले खाना की जानिब से अब तक वाज़ेह वजूहात फराहम नहीं की गई, जबकि मामले की मुकम्मल जांच जारी है। ये अफसोसनाक वाक़या इंतखाबी सियासत में बढ़ते हुए दबाव और इल्ज़ाम तराशी की संगीनी को उजागर करता है, जिस पर तमाम सियासी जमातों को तहम्मुल, जिम्मेदारी और कानून की पासदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि जमहूरी अमल में इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। ఐ థింక్ మార్నింగ్ 4:30 అయినట్టుంది మార్గదర్శనం వరకు అయితే. ఇందులో ఎక్కలి మహాదేవ ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు, బీజేపీ క్యాండిడేట్ ఆయన, మక్తల్ నుంచి మక్తల్ సంబంధించిన ఆయన. దానికి కారణాలు తెలియదు మనకి ఇంతవరకు. ఆయన నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే సూసైడ్ నోట్ కూడా ఏం రాయలేదు. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే అంటున్నారో మాకు ఎట్లాంటివి ఏం లేదు. ఏ ఊరి పైన ఇచ్చినా కానీ భార్య కానీ, కూతురు కానీ, కొడుకు కానీ, వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎట్లా ఎఫ్ఐఆర్ ఇస్తే ఆ రకంగా బుక్ చేస్తాం మేము. దానికి మాకు అందులో మేము పనిగట్టుకొని పోలీసులు ఈ రకంగా చేయడం, డిక్టేట్ చేయడం అది ఉండదు. వాళ్ళు ఏ రకంగా ఇస్తే ఆ రకంగా బుక్ చేస్తాం.
हैदराबाद की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लगी आग की तहकीकात के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग नागपुर के माहिरीन की एक टीम हैदराबाद पहुंच गई है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस बी शिवादर रेड्डी ने बताया कि माहिरीन मुकामी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम के साथ FSL में आग लगने की वजूहात की तहकीकात करेंगे और तमाम तफसीलात का पता चलाएंगे। डीजीपी ने बताया कि माहिरीन की जानिब से आग लगने के वाक़े की जांच की जा रही है और आइंदा चंद दिनों में आग लगने की हकीकी वजह का पता चल जाएगा। शिवादर रेड्डी ने आग लगने के वाक़े में किसी अहम डाटा के तल्फ हो जाने की अंदेशे मुस्तरद कर दिए हैं और कहा कि कुछ अफराद की जानिब से ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं कि ताहम ये गलत हैं। कोई अहम डाटा तल्फ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो अहम मामलात का डाटा है वो पहले ही अदालतों को भेज दिया गया था और 1% भी डाटा तल्फ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नोट बराए वोट हो या फिर फोन टैपिंग मामले का डाटा हो, पहले ही मुतालिका हुक्काम को रवाना कर दिया गया था। సేవ్ చేశారా? ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయండి, ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. మీరు భయపడవసరం లేదు, బాధపడవసరం లేదు. చాలా మంది ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్లీ తెలిసి తెలవక స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చిండ్రు. ఏది అందులో ఏదో పాత కేసు, చాలా కీలకమైనటువంటి కేసు సంబంధించినటువంటి అవన్నీ పోయినాయని చెప్పి ఇది టోటల్లీ ఫాల్స్. అది అట్లాంటిది ఏం పోలేదు. మొత్తం ఏదైతే ఆ పర్టికులర్ కేసు 2015లో అయినటువంటి కేసు సంబంధించినటువంటి కేసు మెటీరియల్ ఉందో అది 2021 కల్లా మొత్తానికి మొత్తం ఎంటైర్ మెటీరియల్ కోర్టు పంపించినాము. ఎఫ్ఎస్ఎల్లో ఆ కేసు సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ ఏం లేదు. అది తప్పుగా పనిగట్టుకొని పోలీసులను బదనాం చేయటమో లేకపోతే ఒక మిస్రిప్రజెంటేషన్ చేయటమో, ప్రజల్ని మిస్లీడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొంతమంది. అది పూర్తిగా తప్పు. మా దగ్గర ఆ కేసు సంబంధించినటువంటి 2015 జరిగినటువంటి ఆ కేసు సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ మా దగ్గర ఏది లేదు. ఎంటైర్ మెటీరియల్ వాస్ షిఫ్టెడ్ టు కోర్ట్. అది ఛార్జ్షీట్ కూడా అయిపోయింది ఆ కేసులు. కాబట్టి అది ఆ రకంగా ఒక అనుమానం కలిగించేట్టు మాట్లాడటం తప్పు. అక్కడ ఎక్కడ లోపం జరిగింది? అది ఆ లోపం ఎక్కడో తెలుసుకుంటున్నామండి. వాళ్ళు ఆల్రెడీ అప్పుడు అయిన తర్వాత చాలా కేర్ తీసుకున్నారు, చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చారు అందులో. అయినప్పుడు కూడా ఎందుకు జరిగింది అన్నది చూస్తున్నాం మేము. అన్ని ఏర్పాట్లు, సురక్ష సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ పర్టికులర్ అగ్ని ప్రమాదం ఎందుకు జరిగిందో వెరిఫై చేస్తున్నాం. సార్, ఎఫ్ఎస్ఎల్ బిల్డింగ్ అనేది 1978 లో కన్స్ట్రక్షన్ అయింది అంటున్నారు సార్. సో ఇప్పుడు డ్యామేజ్ తర్వాత దాన్ని ఏమన్నా షిఫ్ట్ చేసే అవకాశం ఉందా? దానికన్నా ప్రత్యేక భవనానికి కేటాయించారు? ఆల్రెడీ దాని పక్కన ప్రత్యేక భవనం కట్టినామండి. దాని పక్కన అనుకోనే కొత్త భవనం కట్టినాం. దాంట్లోకి త్వరలోనే షిఫ్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇందులో ఇది అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. అయితే ఇప్పటికిప్పుడైతే అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేసి కొత్త ఏరియాకి వెళ్ళిపోవాలన్న అదైతే లేదు. మోస్ట్లీ ఇప్పుడున్న కొత్త భవనాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు ఉపయోగిస్తాం. हैदराबाद शहर में बढ़ते हुए खतरनाक बाइक स्टंट्स के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी करते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार IPS ने नौजवानों से अपील की है कि वो सड़कों को सोशल मीडिया की शोहरत या वक्ती सनसनी का मैदान ना बनाएं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के साथ पैगाम जारी करते हुए कहा कि बाइक पर किए जाने वाले खतरनाक करतब बज़ाहिर सनसनीखेज जरूर लगते हैं, मगर मामूली सा हादसा भी पूरी जिंदगी बिस्तर पर पड़े रहने या कीमती जान के ज़ाया का सबब बन सकता है, जबकि ऐसे स्टंट से दूसरों की जानें भी खतरे में पड़ जाती हैं। कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि बाइक पर खतरनाक स्टंट्स करना, खास तौर पर पिछली नशिस्त पर सवार अफराद की जान को दांव पर लगाना कानूनन जुर्म है और इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नौजवानों को पैगाम दिया कि सोशल मीडिया के लाइक्स और झूठे हीरोइज्म के लिए अपना सुनहरा मुस्तकबिल बर्बाद न करें। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, जिम्मेदारी के साथ ड्राइविंग करें और याद रखें कि जिंदगी अनमोल है। हैदराबाद के कुछ इलाकों में मंगल की सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। मुकामी अवाम ने ये बात बताई। कहा गया है कि हल्के असम्बली खुतबुल्लापुर के गाजुला, रामाराम और आदर्श नगर के इलाकों में आज सुबह तकरीबन 10 बजे ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। ये झटके चंद सेकंड के थे। मुकामी अवाम ने दावा किया कि इस दौरान ज़मीन हलती हुई महसूस हुई। अवाम ने बताया कि ज़लज़ले के झटके महसूस होने पर अवाम में खौफ की लहर पैदा हो गई थी और वो अपने घरों से बाहर निकल आए। अवाम ने बताया कि इन्हें इस इलाके में पहली मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं और इस दौरान ज़मीनी लड़ज़लाती हुई महसूस होने लगी थी। मुकामी अवाम के बयानात के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए थे। ज़लज़ले के इन झटकों में किसी तरह के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है।
हैदराबाद में मंगल की सुबह आग लगने का दूसरा वाकया भी पेश आया है, जहां एक स्कूल के सेलर में आग लग गई थी। तफसीलात के मुताबिक मियाँपुर इलाके में वाक़े नारायणा स्कूल के सेलार में आग लगने का वाक़या पेश आया। सेलार में गहरा धुआं निकलता हुआ देखकर खौफ की लहर पैदा हो गई थी। स्कूल इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तौर पर फौरी हरकत में आते हुए तलबा का तखलिया करवा दिया गया और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड अमले को तलब कर लिया गया था। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने के इक़दाम किए। इस वाक़े में किसी के जख्मी या मुतासिर होने की कोई इतला नहीं है। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। तहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तलबा को बाहिफाजत तखलिया करवाने के बायस कोई जख्मी नहीं हुआ, जिस पर स्कूल इंतजामिया और हुकाम ने राहत की सांस ली। शहर के इलाके अतापुर में वाक़े सुजुकी शोरूम की सर्विस सेंटर में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग बहुत तेजी से फैल गई, जिसके नतीजे में 3 कारें पूरी तरह खाकतर हो गई। आग अत्तापुर पिलर नंबर 185 के करीब वाक़े सुजुकी सर्विस शोरूम में लगी थी। कहा गया है कि स्क्रैप गोदाम की वजह से आग लगने का वाक़या पेश आया। 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। तेजी से की गई कार्रवाई के नतीजे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तहम पुलिस और हुक्काम ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर अतराफ के 90 खानदानों का तखलिया करवाया था और इन्हें महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया था। मुकामी अवाम ने शोरूम हुक्काम पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम आयद किया है। पुलिस इलाके के CCTV कैमरों का जायजा ले रही है और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया जा रहा है। ताहाल आग लगने की वजूहात का भी पता नहीं चल सका है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अर्ली मॉर्निंग 1:40 को इन्फॉर्मेशन आया मारुति सुजुकी सर्विसिंग सेंटर में फायर एक्सीडेंट हो रहा बोल के, और पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की इंटीमेशन आया तो इमीडिएटली हम रश हुए। साथ ही साथ फायर इंजन फायर ब्रिगेड्स आया। सर्विसिंग सेंटर में बैक साइड थोड़ा स्क्रैप था, ये कार का सर्विसिंग सेंटर का जो स्क्रैप रहता है पीछे एक गोदाम का जैसे रखे, उसमें से आग लगा बोल के प्राइमरी इंफॉर्मेशन आया। उसको पूरा आग कंट्रोल में आ गया। जो सर्विसिंग सेंटर आया 2 कार पार्शियली डैमेज हुआ, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, आदमी का नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, कैजुअलिटीज नथिंग। तो जो डैमेज हुआ उसका एस्टिमेशन सुबह मालूम होता, छोटा डैमेज है। बट बाजू वाला जो लोकल पब्लिक बहुत हेल्प करे, वो अंदर जो कार है कार बाहर निकाले, पुलिस भी आ गए, सब कार बाहर निकाले, फायर कंट्रोल में कर दिया। अभी तक कुछ हुआ? कुछ नहीं है, जान का नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। लोकल पीपल दे आर वेरी हेल्पफुल, यस हेल्प करे। और वॉचमैन लोग अंदर थे, उन लोग भी बाहर आए। उन लोग थोड़ा कंप्लेंट दे रहे, थोड़ा यहाँ से हटाना, स्क्रैप्स करने टाइम में नहीं निकाल रहा बोल के, सुबह उन लोग जाके पुलिस स्टेशन कंप्लेंट देता हूँ बोलते बोलते। कौन सी वजह से कुछ हुआ? सुबह मालूम होता, CC फुटेज देखेंगे, और स्क्रैप की वजह से हुआ था। आदिलाबाद जिले इलेक्शन ऑफिसर व जिले कलेक्टर राज शीशा ने आदिलाबाद म्युनिसिपल हुदूद में कल 11 फरवरी को मुनाक़द होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर तमाम वोटरों से अपील की है कि वो बिला खौफ व खतरा अपने हक राय दही का भरपूर इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ के रोज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और पुरअमन, आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिले कलेक्टर ने कहा कि बुजुर्ग और माजूर वोटरों की सहूलत के लिए तमाम पोलिंग मराकज़ पर व्हीलचेयर्स का इंतजाम किया गया है, जबकि वोट डालने के लिए वोटर स्लिप के साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से मंजूर शुदा 18 शनाख्ती कार्डों में से कोई एक लाना लाजमी होगा। इस दौरान राज शीशा ने TTDC मरकज में क़याम, पोलिंग सामान की तकसीम व रिसेप्शन मराकज़ का मुआयना करते हुए प्रीसाइडिंग और असिस्टेंट प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स को इंतखाबात के दौरान मुकम्मल चौकस बरतने की हिदायत भी दी है। आप सबको पता है कि कल आदिलाबाद म्यूनिसिपैलिटी में कल 11 तारीख
सुबह 7 से लेकर शाम के 5 बजे तक आदिलाबाद म्यूनिसिपैलिटी में वोटिंग, जो हमारे इलेक्शंस हैं उसका कल वोटिंग है। तो मैं सभी आदिलाबाद म्यूनिसिपैलिटी के वोटर्स को यही बोलना चाहता हूँ कि आप सब जिन जिन का नाम वोटर लिस्ट में है, वार्ड वाइज वोटर लिस्ट में है, वो सब कल अपना वोट जो है वो पक्का उसको उपयोग करें, पक्का उसको कल अपना वोट डालें। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन से और स्टेट इलेक्शन कमीशन से एक हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हक है, जिसको हम सबको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हम वोट डालेंगे तो उसके बाद ही एक हम अच्छे कैंडिडेट को इलेक्ट करके फिर टाउन का समस्या हो या फिर वार्ड का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम उनके जो भी वार्ड काउंसलर आते हैं या फिर जो भी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनसे बात करके, उनसे डिस्कस करके फिर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हम वोट नहीं डालते तो ये जो हक है वो भी हम फिर यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम अगर वोट डालें तभी हम किसी को पूछ सकते हैं। अगर हम वोट ही नहीं डाले तो हमारे पास पूछने का कहाँ से हक रहता, कहाँ से अधिकार रहता। तो उसके साथ साथ हमारे BLO भी अभी तक 90% वोटर स्लिप भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो जो भी आपको वोटर स्लिप दिया है, वोटर स्लिप में क्लियरली बताया गया है कि पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है, क्या पोलिंग स्टेशन का टाइम है। उसके साथ साथ 18 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं, एपिक ID हो गया हो, ये आधार हो गया हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया हो, इस तरह के 18 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो BLO का जो वोटर स्लिप दिया है वो और 18 तरीके का जो कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये दोनों लेकर आप कल सुबह 7 से लेकर 5 बजे का जो भी टाइम है, मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि एंड मोमेंट पे ज़्यादा आने से फिर क्यू भी बहुत रहता, तो सब सुबह 7 से लेकर 11, 12, 1, 2 जो भी टाइम है, आपका जैसा भी कन्वीनियंट टाइम है उसमें आकर अपना वोट डालें। जिले निर्मल में बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र अमन व अमान को यकीनी बनाने पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जिले SP डॉक्टर G जानकी शर्मा IPS ने भैंसा टाउन में रोड मार्च में शिरकत की। रोड मार्च के दौरान उन्होंने पोलिंग मराकज़ के अतराफ और हसास इलाकों का मुआयना करते हुए मुतालिका ओहदेदारों को सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर ज़िले SP ने वाज़ेह पैगाम दिया कि इंतखाबात के दौरान अमन व कानून में खलल डालने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस रूट मार्च का मकसद अवाम में हसास तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत करना था, जिसमें भैंसा ASP राजेश मीना IPS इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, RSIs, शिवांगी खवातीन टीम और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार शरीक थे। టౌన్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు కంప్లీట్గా పూర్తి చేయడం జరిగింది. దీనికోసం మనం ఒక 500 వరకు ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము. అలాగే బయట నుంచి చాలామంది వచ్చారు. అన్ని రకాలుగా మనము క్రిటికల్, నాన్ క్రిటికల్ పోలీస్ స్టేషన్స్ అండ్ సెన్సిటివ్, హైపర్ సెన్సిటివ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకున్నాము. దీనికి సరిపడా బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ASP రాజేష్ మీనా IPS ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏర్పాట్లన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. తర్వాత ఏ రకమైన అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అన్ని రకాల ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నాము. మనము శాంతియుతంగా ఎన్నికలు జరుగుతాయని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद असेंबली हल्के में 11 तारीख को मुनाक़द होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन ऑफिसर दिशार्थ ने बताया कि जहीराबाद म्यूनसिपालिटी की 37 वार्ड्स में होने वाले इंतखाबात में मजमूई तौर पर 78,819 वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जबकि 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि शफाफ और मुनज़्ज़म पोलिंग के लिए जहीराबाद में 121 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पोलिंग व असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर्स को मुकर्रर करते हुए वोटरों की तादाद के लिहाज से बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर्स तकसीम कर दिए गए हैं। पुरअमन और खुश असलूबी से इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से एक एडिशनल SP, एक DSP, 6 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 20 सब इंस्पेक्टर्स और 150 पुलिस कांस्टेबल्स तैनात किए गए हैं। सबको नमस्कार। स्टेट इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के तहत कल 11 तारीख के दिन म्यूनसिपल जहीराबाद को इलेक्शन कंडक्ट करना जा रहे। वो इलेक्शन के तैयारी के रूप में आज बागारेड्डी स्टेडियम में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यहाँ पर बना चुका है। 121 पोलिंग स्टेशन, 37 वार्ड्स जहीराबाद म्यूनसिपालिटी के लिए पूरे अरेंजमेंट्स कर चुके हैं
अभी तक 600 के ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स को पीएस के हिसाब से अभी बसों के रूप में वहाँ पर भेज चुका है। कल इलेक्शन के लिए जहीराबाद म्यूनसिपाल्टी के जनाब पूरे इत्मीनान से आपके वोट कास्ट करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। जहीराबाद के जनाब पूरे वोट कास्ट करने के लिए मैं अपील करता हूं और पुलिस और रेवेन्यू म्यूनसिपल पूरे डिपार्टमेंटों के साथ और टीचरों के साथ इलेक्शन अरेंजमेंट पूरे कर चुके हैं। जहीराबाद के जनता पूरे कल वो लोगों के पोलिंग स्टेशंस में जाके वोट करना बोल के अपील कर रहे हैं। थैंक यू। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। मुसलमानों को गोली मारने की एआई वीडियो पर हलचल। एमआईएम वफद की आसाम के सीएम के खिलाफ पुलिस कमिश्नर से शिकायत। मुतनाज़ा वीडियो पर फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम का इख्तिताम। तमाम सियासी जमातों ने शिद्दत के साथ चलाई मुहिम। एक दूसरे पर आयद किए संगीन इल्जामात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 282 वार्ड्स में मुकाबला। बीजेपी का भगवान राम नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान। मजलिस को करार दिया जमहूरी ताकत। साथ ही कहा वोट मांगने भाजपा असदुद्दीन ओवैसी का नाम करती है इस्तेमाल। तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन से एक दिन कबल नारायणपेट में बीजेपी उम्मीदवार की खुदकुशी। मगथल बल्दिया में काउंसिलर के लिए मुकाबला कर रहे थे वाई महादेव। कांग्रेस पर हिरासानी का इल्जाम। भाजपा का एहतजाज। अत्तापुर में वाक़े सुजुकी शोरूम के सर्विस सेंटर में आग लगने का वाक़या। 3 गाड़ियां खाकिस्तर हो गई। 90 खानदानों का तखलिया करवाया गया। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।